So, welcome everyone. Thank you for joining. My name is Monica, and today we have uh, another session of sharing circle or space for youth age group 18 to 28 years. And I would just share a bit of introduction so that those of us who are here for the first time, they have an idea what is this circle about. So, we at Living Light, www.livinglight.in, I don't know, maybe a few of you have gone through the website. Uh, we think that it's possible to live a burden free life. We don't have to live continuously with burdens in our life. Stress and struggle is not a way of life, which has been a way of life for so long. So, can we use all the challenges that we have in life, all the difficulties that we have in life, so that we have the courage to transmute those challenges into a way for progress? So any darkness that I go through, any challenge that I go through, what do? I use it for my progress. Yeah. And so that it stops being a burden to me. It turns into a joy when I use it for my progress. So this space specifically is for youngsters, young people who are undergoing maybe some relationship related issues, job related issues, family, issues with parents usually. So this space is for all of us young people who are wanting to share such kind of issues and wanting to also transform them, not just for sharing or advice giving, but to transmute them. How do I use my day to day challenges? And challenges are a way for human beings. There is no human being on this earth which who does not have any challenge in life. We all face challenges in different phases of our life. So, can we, instead of wanting to run away from those challenges or wanting to shoo away the burdens and challenges, is there a possibility that I share it? I collectively question it, reflect upon it, and then find a way through it, find my own strength through that challenge. Is that a possibility for all of us? That is what we do here. Yeah. So, how it goes around is that I just open the space after this introduction, and those of us who are undergoing some mental conflicts, emotional, confusions, something is not making sense in life. All of that is absolutely normal. Even depression is absolutely normal. We go through depression. So, can I use the depression or a feeling of being lost in life? A feeling of maybe lacking a sense of purpose in life. Yeah. Why am I born at all? What am I to do on this earth? So all these questions can be put forward courageously so that we are able to shed some light to get some clarity on this, or maybe invoke some questioning in our life. And then what happens is that these challenges don't appear to be burdens anymore. They appear as a raw material for growth. So this is what we do here. We have the potential of becoming alchemists or magicians, so that we can use all the challenge, all the raw material in our life, all the confusions and conflicts in our life, which is absolutely normal as a human being, in order to grow and evolve as a human being. That is our task. Yeah. So with that, I think I would just open the space for sharing and allow yourself to undergo a little bit of hesitation. Those of us who are here for the first time can begin by sharing why are we here. You could be somewhere else at this moment of time, but you chose to be here at this point of time. So there must be something resonating, and that's why you are here. So we can also begin with sharing about that. Yeah, why are we here today? Yeah. Can I go first? Yes. Hi, hi everyone. My name is Priya, and
Actually, I'm going through a lot right now. I'm just overwhelmed with all the things, and I don't know how to, frame those things into meaningful sentences. I don't know. I mean, I have problems in my family. I'm dealing with my, I mean, career-wise, I'm also not. I mean, I'm suffering, and my relationships, they never work. So I'm just a mess right now, and I don't know how to get myself out of this shithole. I'm sorry to use that language, but I don't know. I'm just one of my friends suggested this, and she's also here. So she told me that it'll be a nice platform for you to speak up and see how it goes, and maybe you can find answers here. So I'm here. That's why I'm here. Thank you for providing us that space. Beautiful, Priya. Thank you for your very honest sharing. And we are all a mess. So you are no different. And I can completely empathize the space you are coming from. It's hard, okay, to be a mess and to stay with that mess is not an easy thing. Yeah. And somehow we don't even recognize how did I land up here, in this shithole. I don't even recognize, on what was I thinking, really. Yeah. Yes, Swaroop, we'll come to your question later. uh, so first of all, just allow the mess to be there. Okay, it's completely okay to be a mess. There's nothing wrong with you. Hmm? Yeah, I understand. And my ego also doesn't allow me to, get out of this mess. I know the ways. I think I am self-aware enough to, see the right things, but I don't act upon it. And I Yeah, have self-esteem issues and we all suffer from that. self-defeat. You are saying my ego does not allow me to get out of the mess. I would try to pick up that sentence and maybe reflect upon it for all Yeah. of us. Yeah, ego is a mess. It's not that ego does not allow you to be out of the mess. As long as we operate from the ego, it is a mess. And this is our journey. We often talk about purpose of human birth. And I was sharing in the beginning, we are all magicians. We are not aware that we are. What is the magic that we are supposed to do? That we can do, we are capable of doing? The magic is that we have to transform the mess that is ego into something beautiful. And there must be some reason that we don't really like to be in a mess, right? There must be some reason. We don't really enjoy suffering. We don't really enjoy disease. Yeah. So there must be signal somewhere there. What should be the signal? That I can do better than that. I think I deserve a better life than that. So this is what we have to recognize. Problems are going to be there. Challenges are going to be there. Why are they going to be there? Because it is, imagine that you are a wicked witch, or not a wicked witch, but a witch. Yeah. So you have this cauldron, huh? And you have a lot of raw material. So all the problems, all the mess, all the challenges in our life, all the shitty things in our life, what are they? They are the raw material. I have to use that to transmute into something beautiful, something magical. Yeah. This is my task. So there is no running away from the mess. Mess wants to be held. Imagine, a child comes and it wants a hug. Just that. So I don't have to shoo away the child. Mess is like that. Our shitty things are like that. They are not to be shooed away.
But I sometimes feel that I'm caught up in this vicious cycle where I know the things that are going to get me out of this, but I'm not really working on those things. And Beautiful, beautiful. and I'm hurting myself even more. My self-esteem is getting hurt and my confidence is dwindling every day. First of all, forget about self-esteem. You are an alive being. Why would you want a self-esteem? Self-esteem is an image. It's nothing but an image about myself. You are a flowing river. Why do you want images about yourself? Yeah? You are a dynamic being. Dynamic means changing every moment. Allow yourself that space to be. Sometimes I am kind, sometimes I am unkind. Sometimes I am wicked witch, sometimes I am good witch. Why to seek for a self-esteem? है ना? When you can flow, why to stagnate in self-esteem? So first that. Then the other thing you share, and I think most of us would resonate with that. The other thing you share is, I know that this is not benefiting me, and yet I fall into the trap again and again. Yes. Yeah. And this is something we all face. There is a knowing in us that this is not the right path for me. And yet my tendencies are so strong that I'm not able to really bridge this gap between knowing and living it out. This gap is to be bridged. And this knowing within me is the light of understanding that I know this is not good for me. You know, I know that I fall a trap to this tendency again and again, again and again. I fall badly on my nose, and yet I am not able to bridge the gap. This still exists, and it's frustrating at times. Because ऐसा लगता है कि अरे पता तो है, पता तो है, फिर होता क्यों नहीं है? Mm. And one feels ashamed again and again, falling into the same hole, shitty hole again and again. Guilt भी Exactly. develop हो जाती है. कि जब पता है कि उधर नहीं मुंह मारना, तो फिर मैं बार बार उधर मुंह मारती क्यों? बट मारती हूं. आदत है ना, पुरानी पुरानी आदत है. Old habits die hard. Yes. Yeah, so we don't have to feel ashamed about it. We all have this. We all have a knowing also, and yet we also have this gap between knowing and living. Yeah, we all have that. So first of all, I need to know that this is my task as a human being or a magician. This is my task. There is nothing to be ashamed of. यही तो काम करने आए हैं धरती पे. और क्या काम है? खाना पीना रोटी कपड़ा मकान थोड़ी ना काम है हमारा. After a few years of रोटी कपड़ा मकान, one feels depressed. अरे भैया, इससे ज्यादा भी तो कुछ होना चाहिए. Exactly. Exactly, right? So this is my task. This is such a huge task that one lifetime is not enough. The gap between knowing and living. And now I have to discover for myself कि जब मैं जानती हूं तो मैं बार बार इधर पहुंच कैसे जाती हूं. अब इसको इन्वेस्टिगेट करना है. इसको इन्वेस्टिगेट करना है. दिस इज माय एडवेंचर. कुछ ना कुछ तो मुझे इस टेंडेंसी से मिल रहा है, तभी मैं बार बार जा रही हूँ. जैसे मक्खी जाती है ना शहद के पास, जा जाके चिपक जाती है. उसकी आदत है, उसकी हैबिट है. या so we have to see that what is the honey in this tendency which attracts me again and again, which pulls me again and again. I get stuck in the pattern like a fly in a sweet thing. Moth. Yeah, what is it? So we have to catch our dishonesties. This is the adventure. कुछ गड़बड़ नहीं है, ये यही एडवेंचर है. दिस इज द ब्लडी एडवेंचर ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो इससे भाग के कहां जाएंगे हम? This is the beauty that we have to discover, that using my tendencies, using my dishonesties, I have to bridge this gap from knowing to living. And this bridging of the gap is absolute joy. Absolute joy. आप देखते हो कि मैं जहां 1 साल पहले थी, अब मैं वहां नहीं हूं. हाँ, अभी भी तुच्ची हूं, गलतियां हैं मेरे में भी,
बट अब मैं वहां नहीं हूं, अब मैं उससे थोड़ा इधर उधर मूव कर चुकी हूँ. And This is, that's my biggest fear, actually, yeah. to And live a stagnant life. मतलब I want to see some kind of growth. Even regression भी चलेगा मुझे. But I should be able to see कि I have moved somewhere. I don't want to get stuck at one place, you and I cannot, feel that I have you cannot been. actually, जैसे ही हम stagnate होने लगते हैं ना, the universe gives us signals. How does it give us a signal? What do you think would be a signal? I don't know. Think about it. Depression. Depression, beautiful, beautiful. Depression is a signal that you are getting stagnant. Anxiety attacks. Exactly. Anxiety attacks, you know, anxiety attacks, panic attacks, frustration. Snehi says frustration. Yes, this is nothing but a signal. Imagine that the universe is a mother. Okay, the whole creation is a mother. We are all the children. Hmm? Now, the mother knows the potential of the children. Mother very well knows कि बच्चा इससे ज्यादा capable है. लेकिन बताए कैसे बच्चे को, बताए कैसे, बच्चा बार बार ट्रैप में फंस जाता है, कैसे बताए? फ्रस्ट्रेशन इज अ सिग्नल, एंजाइटी इज अ सिग्नल, फियर इज अ सिग्नल, स्टैग्नेशन इज अ सिग्नल, डिप्रेशन इज अ सिग्नल. भैया, यू कैन डू बेटर देन दिस, मूव ऑन, मूव योर एस. So all these things, so called negative things, can we use them as a signal कि मैं इससे बेटर एक जीवन जी सकता हूं. Yeah, I can live a beautiful life. नथिंग एल्स. जैसे रेड लाइट होती है, रेड लाइट का क्या करना होता है? हम रेड लाइट से परेशान थोड़ी ना हो जाते, हाय हाय रेड लाइट आ गई, ओ माय गॉड कब ग्रीन होगी ना, ऐसे तो नहीं करते हम. हम क्या करते हैं? उसको सिग्नल की तरह देखते हैं. जस्ट दैट, सिग्नल की तरह देखा, क्या कह रही है, रुक जाओ, रुक गए. और अगर नहीं रुकते तो क्या होता है? चलान, Accident. एक्सीडेंट, वी गेट हिट. This is what has to be used. Depression, frustration, anxiety is a signal. What is the signal? I deserve a better life. Follow the signal and go ahead. If you ignore the signal, accident, चालान, ये सब होता रहेगा. ये हमारी पनिशमेंट है कि भैया सिग्नल क्यों नहीं सुना. So this is what we have to do. Can we use all of this as a raw material and nothing else? ज्यादा उससे इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना. डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से हमने ना लेबल दे दिए इन चीजों को. वो लेबल बड़े एलिटिस्ट लगते हैं. अरे आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, we actually make fun of it. मतलब we feel that बहुत इनवोक चीज हो रही है मेरे साथ. I am going to anxiety attacks. They are just to be used and move on, move on. I fall into a trap again and again. What do? I use it as a signal. Move on. Use it for your growth. And you were talking about growth and progress. All of us love growth and progress. It's a common thing with human beings. We love to grow, we love to progress in our own unique ways. And that is why depression comes when we are not growing, because it is not our nature. Stagnation is not our nature. Growth is, progress is, expansion of the being is. And that is why it gives us joy. और जॉय मिसिंग हो जाता है तो डिप्रेशन आ जाता है, बताने के लिए कि भैया क्या कर रहे हो, उठो, जागो. Yeah, so stay with yourself. Stay with yourself in whatever mess you may be. Be your bestest friend and use it to grow. दिल पे नहीं लेने का इतनी सारी चीजों को. वो दिल को भारी करता है ना. दिल पे नहीं लेने का बिल्कुल भी, जीरो. अपना काम करो, प्रोग्रेस जो उससे मिल रही है लेते चलो, भगवान का नाम लो, आगे बढ़ो. फिर कोई और चैलेंज आएगा, प्रोग्रेस जो मिल रही है, लर्निंग अनलर्निंग जो मिल रही है, लो, भगवान का नाम लो, आगे बढ़ो. It's almost like that. Yeah, and then no one can stop you from growing. This is the beauty of this path, where all life is yoga, all life is adventure.
No difficulty, no relationship breakup can stop you from growing. You will learn even from the breakup. You will learn even from a failed job. Allow yourself to make failures, do blunders, make mistakes, so that you know how to live and learn. A little infant when he learns to walk, ये कितनी बार गिरता है, माय गॉड, कितनी बार, अनंत बार गिरता है वो. अगर इमेजिन करो कि उसके दिमाग में आ जाए कि हाय हाय मैं गिरूंगा नहीं, लोग क्या कहेंगे, पागल हो जाए, चल नहीं पाए बेचारा. True. सो दिस इज सो ब्यूटिफुल दैट द यूनिवर्स हैज मेड इट इन दिस वे कि उस समय इतना दिमाग ही नहीं होता कि लोग क्या कह रहे हैं. अदरवाइज उस समय अगर इतना दिमाग हो तो बच्चा चलना नहीं सीख पाए, पक्का, गारंटी है इसकी. Yeah, so allow yourself to be like a child, allow yourself to go through failures, make blunders, own your blunders and learn from your blunders. That would give you joy, that would make this life no, a little less miserable. Yeah. Yes. Yeah, Swarup, you want to share? Yeah, I learned a lot today. That session was whatever you told in like this 10 to 15 minutes. It opened a lot of doors in my mind, in fact, and I have much more clarity right now. I think you are talking to Miss. I didn't. Priya. Priya. Okay, okay. So you are talking to him, to her. Sorry, to her. But I think I got a lot of clarity. Uh, it that thing works for me as well. And right now, why I thought that I should come here is when मैं वो क्वेश्चन भी दिया था, was ego, self esteem, self respect वाला. uh, वो मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और उससे मैं पार आया. लेकिन अभी मैं ऐसे जगह पे हूँ कि मैं ढोंग करता हूँ, बहुत ज्यादा ही ढोंग करता हूँ. मेरे को कोई इंसान पसंद नहीं है, जानबूझ के जाके उससे स्माइल करके अच्छे से बात करता हूँ, उसका दिल जीतता हूँ, उससे काम करवाता हूँ, है ना? और उसको कहीं न कहीं पता है कि ये बंदा बस ऊपर-ऊपर से ऐसे अच्छे बात कर रहा है, लेकिन ये मेरे को नफ़रत करता है और वो मेरे से बहुत बेहतर इंसान है। लेकिन है वो इंसान है घटिया तो घटिया ही रहेगा ना, पर मेरे से उसके जाके मेरा काम करवाना है। मुझे जाके उससे ऑफ़िस का ही बंदा है। एक नहीं ऐसे मतलब 8-10 बंदे-बंदियाँ हैं, है ना? सबको मैं बस झेलता हूँ। एक तरह से बस इन सबको झेलना पड़ रहा है और ये चीज़ एक ऐसा ये में आ चुका है कि मैं इनको झेलते-झेलते ना 6 महीने हो गए और ये एक एंडलेस लूप लग रहा है कि इनको लाइफ टाइम झेलना पड़ेगा और मैं इस चक्कर में ना मैं कुछ ये ऑनलाइन कोर्सेस, बिज़नेस एनालिटिक्स और ब्लॉकचेन के कोर्सेस, क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्सेस, ऐसे 2-3 कोर्सेस में मैं एनरोल किया था। अभी उनका असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, वीकेंड में टाइम नहीं हो रहा है, बस रात को आता हूँ। एक तो मेरा सिगरेट और दारू, ये दोनों छोड़ भी नहीं सकता मैं, पता नहीं क्यों? अचानक से और एक खाने से भी जो प्लेज़र आता है ना, वो मैं बहुत ओवरवेट हो गया। पहले एक ज़िद थी 2020 2019 में एक ज़िद थी बहुत कि यार मेरे को अ अ, ये इश्यूज़ इश्यूज़ जो है मेरा सेल्फ एस्टीम वाला, इसको कैसे कम किया जाए? बुक्स पढ़ा मैंने इधर-उधर के बहुत सारे बढ़िया-बढ़िया बुक्स पढ़ा। मेरे प्रोफ़ेसर ने मेरे को बहुत एक नहीं 2-4 प्रोफ़ेसर मुझे रास्ता दिखाए, क्योंकि मैं उनका बात सुना बहुत। तो उन वो मेरे को बुक्स पढ़ने के लिए बताया। अच्छा, तुझे लगता है प्रोफ़ेसर मेरे को बोला कि बोले सॉरी कि देख तुझे लगता है कि मैं चूँ हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक बेस्ट सेलर तो चूँ नहीं हो सकता ना, तो उसका बात सुन ले, उसका बात पढ़ ले। फिर उसका बुक जब पढ़ा
फिर बार बार मैं रिटर्न रिटर्न गया वो प्रोफेसर के पास, वो मुझे नए बुक्स, मैंने अपना ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट वाला इशू को मैंने सॉल्व किया। मैं लड़कियों से बात नहीं कर सकता था। फिर मैंने जिम गया, ज्वाइन किया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस ज्वाइन की, एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश किया। आई लॉस्ट 20 kgs, 3-4 गर्लफ्रेंड बन गई, सब हो गया। अभी यहाँ पे आके फिर से अटका पड़ा हूँ। एक लाइफ जो है ना स्टॉप हो चुका है। ये कोरोना वाला डिप्रेशन ना, वो एक्चुअली में मैं जी रहा हूँ। तो सारे प्रोग्रेस के मेरे रास्ते जो थे ना वो सब बंद पड़ गए हैं। मैं कोर्स नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जिम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लोगों से मिल नहीं पा रहा हूँ, सब बंद पड़ गया है। तो ये एक स्टैग्नेशन जो है, ये स्टैग्नेशन में मैं अटका पड़ा हूँ, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। Yes, Can I? Mahima. Yes, Mahima. Please share. Hi, so I have shared before, Sarup, I am also a recovering addict. मेरे भी अपने काफी चीजों से हो रहा है जो छूटी हैं, और लॉकडाउन और ये सब फिर से, मतलब हाँ वो चाहिए हमें We're going to अपनी, the same downward spiral again. हाँ जिस से वही निकले थे मैं वहीं कि पे जाना है। लॉकडाउन ट्रिगरिंग हो जाता है फिर से वो चीजें उठाने के लिए जो जिनकी और मे आदत बी दैट छूटी कैन बी अ थी। एक्सक्यूज कि हम वही कंफर्ट हाँ जोन में जाके टिका के बैठना चाहते हैं ना। क्योंकि जब मेरा प्रोग्रेस हो रहा था, मैं वही देख रहा था कि मैं टिका के नहीं बैठ सकता कभी भी वहां पे, और तभी मेरा प्रोग्रेस हुआ था। ये कंफर्ट जोन से निकलना बहुत जरूरी है, और मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। हाँ, वही मतलब मेरे को भी लॉकडाउन अब हो गया है जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ, तो वही स्टेगनेसी, मतलब अब वो घर में करने वाली चीजें ढूंढ रहे हैं जो ऐसे लगे कि प्रोग्रेस करवा रही है, जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स उठा लिया, कोई हॉबी उठा ली, पर हाँ वो मुश्किल है। जैसे आदत है कि मतलब वो एक अच्छी फीलिंग आ जाती थी लोगों से मिलके या मतलब बाहर चीजें करके जो हट जाती हैं, और फिर मन करता है खुद को कंफर्ट करने के लिए खाना ले लो या खुद को प्लेजर देने के लिए वही एक पुरानी इंस्टेंट आदतें ले लो। ग्रेटिफिकेशन एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलना चाहिए, है ना, एक कोकेन की तरह, हाँ अचानक से एक मैं फटाक से आपसे आ जाए, बिल्कुल मजा रिलेट आ जाए। कर पा रही हूँ। हाँ पर वही स्टेग मुझे, मतलब वो मैं स्टेगनेंसी का बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगा मतलब वो अंदर से शायद मन को वो इल्यूजन चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और वो वो देने के डिल्यूजन लिए चाहिए। घर में ही कुछ कर लो, ऐसे कोर्स ही कर लो जिससे कोर्सेरा पे कुछ कर ला 2 घंटे का, मन को लग जाते बड़े प्रोग्रेस हो रही है। नहीं, वो कोर्स तो तो मतलब कर मुझे लेना, कंप्लीट करना तो अच्छा है ना। मेरे बहुत सारे टास्क ऑफिस में भी, यहाँ पे भी पेंडिंग पड़े हैं, अभी भी पेंडिंग पड़े, मैं क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ लेकिन चीजें क्लोज नहीं कर पाता हूँ बस। तो अगर काम पे हो रहा है तो ठीक है, मतलब बस वो स्टेगनेंसी हटानी है जितने दिन है, तो कुछ फालतू नहीं है, कुछ बेकार नहीं है, बस करते रहो। मेरा ये है। हाँ वही है। Neetu, both of you, you are, I'll just mute so that recording has less of noise. Um, ये आपकी दुविधा नहीं है, ये पूरे ह्यूमन काइंड की दुविधा है, दिस लैक ऑफ पर्पस इन लाइफ। कि पैदा क्यों हो गए, एक ऐसे टाइम पे पहुंचते हैं हम, ये क्वेश्चन आता है कि क्या करूं, मतलब क्या करने के लिए पैदा कर दिया भगवान ने, या मतलब खाने पीने सोने एडिक्शन इसके लिए, मतलब टुच्चा लगता है वो, है ना, मतलब देयर इज समथिंग अबाउट एडिक्शन जहाँ पे हमको खुद ही एक टुच्चेपन की फीलिंग आ जाती है कि नहीं, दैट्स नॉट इट, कुछ कुछ गड़बड़ है, घोटाला है। वो अलग बात है कि हम नहीं छोड़ पाते, बट वो घोटाला समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, मतलब जीवन इस चीज के लिए तो नहीं हो सकता। या नो we need, all of us, we need to have something so big in life where we can give ourselves, so that we lose our sense of self in that offering. समझ रहे हो मेरी बात, मतलब we, the work that you have to, I think I had found that purpose। yeah, ये पर्पस जो है
मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा काम है कंस्ट्रक्शन करवाना। कंस्ट्रक्शन में आईटी, डिजिटल, इसका लाइट अभी तक मतलब सनराइज भी नहीं हुआ है। तो मैं इधर-उधर से इंस्पिरेशन लिया। मैं कंस्ट्रक्शन होके भी मैं एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग ये सब कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्शन में ये सारे टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्व करना है। मैं अपने को छोड़ के मैं चाहता हूँ कि सिविल इंजीनियर, डू यू नो 32 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन चेन्नई दे स्टॉप्ड सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। स्वरूप जी, प्लेसमेंट नहीं हो रहे। एक बात बोलूंगी, मैं किसी बाहरी काम की बात नहीं कर रही। एक पर्पस, सेंस ऑफ पर्पस होना नहीं, चाहिए। तो जो पर्पस है ना, वो अभी जो आप बात कर रहे हैं कोई मैं बाहरी, जैसे काम दे दिया आपने आपको ना इंजीनियरिंग का जैसे हो गया, या कोई काम हो, या मैं उसकी बात नहीं कर रही, क्योंकि वो अगेन लिमिटेड है, वो बहुत छोटा है, वो इतना बड़ा नहीं है कि आप उसमें खो पाओ अपने आप को, है ना। we actually need something so big to occupy us so that we don't have time for our trivialities. अपने टुच्चेपने के लिए हमारे पास समय ही ना बचे। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि टुच्चापना खत्म हो जाएगा। हमारी जो छोटापना है ना, हमारा छुटपना, वो खत्म नहीं होने वाला। कुछ ऐसा बड़ा होना चाहिए मेरे पास कि वो मेरे को इतना ऑक्यूपाई रखे कि मेरे पास समय नहीं है एडिक्शंस के लिए। समझ रहे हैं आप? इतना बड़ा अपने आप को काम दे दिया कि मेरे पास समय ही नहीं है एडिक्शंस के लिए। इतना सुंदर काम है मेरे सामने। Now I will not exactly talk what kind of, this is for all of you to reflect upon, कि ऐसा क्या सुंदर दे दूं मैं अपने आप को जिसमें मैं इतना भूल जाऊं। एक कोई एग्जांपल? एग्जाम्पल मैं देती हूँ, हाँ एग्जाम्पल दे सकती हूँ। एग्जाम्पल ये देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आज ये सेशन है, और हम ये वीकली ऑर्गेनाइज करते हैं। एवरीथिंग, हर डे कोई ना कोई एक सेशन होता है जिसमें मुझे इन्वॉल्व रहना है। होता क्या है कि मेरी जो पर्सनल लाइफ है या डे टू डे रिलेशनशिप्स हैं, वॉट एवर, समथिंग काइंड ऑफ दे काइंड ऑफ एग्जैजरेट देमसेल्फ, और वो बहुत बड़ा बन जाते हैं। एक कि ओ माय गॉड, मैं और मेरी प्रॉब्लम, होता है ना बहुत बार कि हमारी और हमारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन जाती है। अब now when I know that I have to take a session and it is very important, I want to give it time. I see that whenever I give it time, in that I lose that sense of stupidity that is weighing down upon me. कि मैं और मेरी issues, वो छोटा बन जाता है उसके सामने। आपको एग्जांपल देती हूँ। एक इमेजिन करो कि आपको फ्लाइट पकड़नी है, आपको कहीं बाहर जाना है, और आप जा रहे हो और रास्ते में किसी इंसान ने आपको गाली दे दी। अब फ्लाइट छूट रही है, फ्लाइट छूट रही है। अब आप क्या करोगे? आप उससे बहस करने लग जाओगे या फ्लाइट पकड़ोगे? क्या करोगे? क्या करोगे आप? फ्लाइट पकड़ेंगे। फ्लाइट पकड़ेंगे। हमारे साथ क्या चक्कर है, हमारे पास ना फ्लाइट पकड़ने के लिए कोई है नहीं। हम बहुत ज्यादा वेले हैं अपने जीवन में, बहुत वेले हैं। इसका मतलब ये है कि हम केपेबल बहुत चीजों के हैं, लेकिन हम देते ही नहीं है अपने आप को किसी चीज के लिए। तो अब इमेजिन करो कि आप वेलापंती कर रहे हो, वेलापंती कर रहे हो, इधर टहल रहे हो, इधर उधर मटर गश्ती कर रहे हो, और एक इंसान आके आपको गाली दे जाए। आप क्या करोगे? आप उसके पीछे पड़ जाओगे। अब गाली बहुत लगेगी कि साले तूने मुझे ये कहा कैसे, हिम्मत कैसे हुई, तू समझता क्या है अपने आप को, ऑल दैट। 1 घंटा आपने बर्बाद कर दिया अपना। ठीक है, अब ये देखो क्या हुआ। यही गाली तब नहीं लगती ज्यादा जब आप फ्लाइट पकड़ने वाले थे। इसका मतलब गाली में उतना दम नहीं है, गाली में उतना दम नहीं है। आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, आप वेले हैं। और जितना हम वेलापंती दिखाते हैं ना जीवन में, उतना हम तड़पते हैं। क्यों? क्योंकि अरे भैया ये काम ही नहीं है। वेलापंती करना ह्यूमन बीइंग का काम नहीं है। दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ योर लाइफ। ईटिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, इट इज नॉट द पर्पस ऑफ योर लाइफ, एंड दैट इज व्हाई यू सफर व्हेन यू डू दैट। बीमारियां हो जाती हैं, मोटे हो जाते हैं, एडिक्शंस हो जाते हैं तरह तरह के, और एडिक्शन कर करके भी गिल्ट में जाए जा रहे हैं। क्यों आ रही है गिल्ट? गिल्ट ये बताने आ रही है कि भैया इससे सुंदर जीवन जी सकते हो। क्योंकि अब इस सेशन में आप हो आज, मैं आपको गारंटी दे रही हूं
इस सेशन में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये बोलेगा मुझे एक सेशन करते हुए गिल्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ये सही काम है। यस, तो गिल्ट क्या बताने आती है? गिल्ट ये बताने आती है कि ये जो काम, जिस चीज में तुम लिप्त हो, जिसमें तुम अपना समय दे रहे हो, ये काम टुच्चा है, ये तुम्हारे लायक नहीं है। अरे भैया, तो क्यों सिर मारते हो बाहर जा जाके वापस उस पे? मत मारो। कुछ दिन खाली भी रहना पड़ेगा, खाली रहो। कोई सुंदर सी हॉबी डेवलप कर लो, अपने आप को कहीं सोशल सर्विस में लगा दो, भूल जाओ अपने आप को किसी काम में। इतने काम पड़े हैं जीवन में, कोई कामों की कमी थोड़ी ना है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज। तो वेलापंती जहां होगी ना, जहां वेलापंती होगी वहां सफरिंग होगी, वहां एडिक्शंस होंगे। जहां वेलापंती वहां एडिक्शंस। और जहां सेल्फ गिविंग है, जहां आप अपने आप को कहीं देना चाह रहे हैं अच्छे कॉज के लिए, आप अपने आप को भूल जाएंगे। बेशक बीमार हैं फिर भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे से ज्यादा जरूरी है वो काम। मेरी बीमारियां तो चलती रहेंगी, अरे वो तो मैनेज हो रही हैं, मेरे से ज्यादा जरूरी वो काम है। और फिर आप जॉय देखो अपने जीवन का। फिर आपको एडिक्शन का मौका भी नहीं मिलेगा, फिर समय नहीं मिलेगा। और जो आप डिलाइट की बात कर रहे थे कि एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आती है, वो भी एक सिग्नल है। क्या सिग्नल है? ये जो संसार क्रिएट हुआ है ना, इसका जो बेसिस है वो है ब्लिस एंड डिलाइट। सच्चिदानंद बोलते हैं ना, द बेसिस ऑफ ह्यूमन manifestation is bliss and delight. Now when I have that ice cream or addiction or alcohol, I feel blissful for some time. Why? Because I don't know any other way to have that kind of a bliss. मेरे को कुछ नहीं पता कि मैं कहां से लाऊं। या तो तुम फिजिकल प्लेजर्स में खो जाओगे, कहीं ना कहीं अपने आप को लिप्त करने की कोशिश करोगे। और लिप्त जब हम अपने आप को करते हैं, अपने आप को खोने, मतलब अल्कोहल में क्या होता है, यू लूज योर सेंस ऑफ सेल्फ फॉर सम टाइम। करेक्ट, That is very liberating in nature. यस, So what we are actually seeking for is dissolution of this limited मैं और मेरी कहानी, मैं और मेरी कहानी। पागल करती है ये। और अल्कोहल है या ड्रग एडिक्शन है या खाना है या फिजिकल स्टिमुलेशंस हैं, वो क्या करती हैं? कुछ समय के लिए आपको मैं और मेरी कहानी से मुक्त कर देती है, सिर्फ 2 मिनट। लेकिन आपको एक और भी कर रही है वो चीज, वो आपको हैंडीकैप बना रही है, वो आपको सशक्त नहीं बना रही। They are taking away your strength. This is the damage that they do. So क्या मैं अपने एडिक्शन से सिर्फ एक चीज सीख सकती हूँ क्या? कि मुझे चाहिए तो मैं और मेरी कहानी का अंत। क्या कोई और भी जरिया है जिसमें मैं इतना ऑब्सेसिवली अपने बारे में ना सोचूं और अपने आप को दे दूं, ऑफर माई सेल्फ इन द वर्ल्ड? और हम सब में वो कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं जहां हम अपने आप को ऑफर कर सकते हैं। somebody can be a good educationist, teacher, somebody can be a good maybe therapist. हम सब में वो नेचुरल इंक्लिनेशंस हैं। कुछ लोगों को बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, they are just very natural with playing with kids. तो कुछ ना कुछ हम में खूबियां हैं जिन चीज में हम अपने आप को दे दें। अगर वो नहीं करेंगे, ये जीवन पर्यंत ये कमी बनी रहेगी। और कोई ना कोई एडिक्शन, या तो थिंकिंग एडिक्शन, एब्यूसिव थिंकिंग, सोचे जा रहे हैं, इमोशनल अत्याचार एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, फूड एडिक्शन, ऑल काइंड ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन। क्योंकि वो खालीपन है ना, उसको भरने की कोशिश करते हैं हम। कैसे भरेंगे ये सूनापन? तो अगर वो सुंदर चीजों से नहीं भरोगे तो कचड़े से भरोगे। जब दिमाग को कुछ काम चाहिए, काम कुछ करना है, उसको करना है। हाँ, और वो सुंदर जब नहीं करता है ना, जब वो सुंदर कामों में नहीं जाता है ना, तब गिल्ट आती है, तब शेम डेवलप होती है। क्योंकि उस कहीं ना कहीं हम में से किसी को पता है कि ये टुच्चा काम है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। या यस अनुषा,
we have to make our blunders. How do I know this is not a worthy flight? I have to try and test it out. If it is expanding me, if any kind of job or work that I am doing is expanding me, progressing me, I am having a sense of joy in that work, then it is a good enough flight. So ये hit and trial करके पता लगता है. Hit and trial, hit and trial. Make your failures, do blunders. Don't shy away from blunders at all. लेकिन गलतियां भी करो तो सुंदर गलतियां करो ना, थोड़ी बड़ी गलतियां करो. वही रिपीटेड एडिक्शन वाली गलतियां कर करके टुच्चापन फील होता रहता है. गलती भी करनी है तो कोई इंटरेस्टिंग गलती करो कि हाँ ये ट्राई करने वाले हैं, चलो जी करो कुछ नया. अब उसमें चांस भी है, रिस्क भी है फेलियर का, बट हम देख लेंगे, बट मजा भी बहुत है. तो जवानी है किस काम की अगर गलतियां नहीं करो. लेकिन टुच्ची गलतियां मत करो जो तुम्हें बार बार गिल्ट और शेम के ट्रैप में खींच ले, है ना. गलतियां करनी भी है तो थोड़ी महान गलतियां करो ना, कि कुछ ऐसा चीज शुरू करिए अपने दोस्त के साथ कि फेलियर भी हो सकता है लेकिन मजा बहुत आ रहा है, कुछ अच्छा कर रहे हैं जीवन में, कुछ सुंदर कर रहे हैं. सुंदरता की तरफ जाइए ना, ब्यूटी की तरफ. अ वर्क विच गिव्स यू ब्यूटी इन लाइफ, नॉट दैट विच यू गिव यू शेम इन लाइफ. अब ये सेशन करने के बाद हमें कोई शेम थोड़ी ना फील होगा कि हाय मैं किस सेशन में चली गई, आज बहुत बड़ी गलती हो गई. नो, इट्स वी ऑल नो इनसाइड आवर ओन सेल्फ व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन. तो आप अपने ही सिग्नल पढ़ना शुरू कीजिए. जहां गिल्ट और शेम फील हो रहा है वो काम बार बार नहीं करने का. जहां एक्सपेंशन फील हो रहा है, लग रहा है ये सही काम है, वहां जाने का, चाहे धीरे धीरे जाओ, वहां जाने का है. डर डर के जाओ, सहम सहम के जाओ, बट जाओ. क्यों? क्योंकि खुलापन फील होता है, ये मुझे फैलाता है ये काम. ग्रोथ, प्रोग्रेस, जॉय. या और ये जो गुड इनफ वाली फीलिंग आप कर रहे हो अनुषा, है ना. देखो, व्हेन आई से आई एम नॉट गुड इनफ, क्या है? एक विचार ही तो है, थॉट ही तो है ना, थॉट ही है. उसको कोने कर दो भैया. हाँ मुझे सुनाई दे रहा है तू क्या कह रही है, तू कह रही है मैं गुड इनफ हूं, नहीं हूं, हाँ ठीक है, चल बैठ जा, कोने में बैठ जा, ये काम फिर भी करना है मुझे. ऐसे करना होता है काम. थॉट्स भी रहेंगी, फियरफुल एंग्शियस थॉट्स भी रहेंगी, उनको पॉकेट में डालो और भैया अच्छा काम करो, सार्थक काम करो. थॉट्स तो रहेंगी रहेंगी, उनकी बात नहीं सुनने का इतना. वाई आर यू बाइंग इन टू दैट थॉट? कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा अनुषा को बोल के चले जाए, अनुषा तू तो पागल है, तो तू क्या उसके पीछे पड़ जाएगी? नहीं पड़ेगी ना. लगे अब अच्छा ठीक है, स्ट्रीट पे कोई बोल के चला गया, मैं क्यों भाव दूं इस चीज को. तो थॉट्स आर लाइक दैट. आधी से ज्यादा थॉट्स तो इग्नोर करनी चाहिए. Why are you buying into that? I am not good enough. Just a thought, put it in the pocket, go ahead, do the stuff. हर थॉट को इतना भाव देने लग जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना जीवन में. मुझे इस सेशन से पहले यही लग रहा था, आई एम नॉट गुड इनफ. बैठ गई आके, हो गए वार्तालाप शुरू, ठीक है. वाई टू शू अवे दैट थॉट? बिठा दो उसको, कोने में बिठा दो, जगह दे दो, ठीक है तू बैठ जा यहाँ पे. हाँ. Hi, Monica. Yes, Mahima. So yeah, it is very refreshing. Like there is so much self-help and everything, to improve your self-esteem and to feel good enough. And your perspective is like we talked about it in self-worth session also. Yeah, that time it was like too weird for me to even understand it. like ये क्या बोल रही है. वो self help मतलब self work तो करना होता है, but now it's like अब थोड़ा समझ आ रहा है कि हाँ यार, मतलब इतना ज्यादा सोचना ही क्यों है कि मैं अच्छी हूँ, बुरी हूँ या नहीं अच्छी हूँ. मतलब जो करना है वो करो, वो पैरेलली दिमाग में चलता रहेगा. It is like maybe fake it till you make it, like do even without the feeling. But yeah, I like that. It's very new and very refreshing for me. and I wanted to just say that. बिल्कुल बिल्कुल. उसको पैरेलल में, टुच्चेपन को हमने पैरेलल में चलते रहने देना है. हमने टुच्चा नहीं हो जाना है.
जो भी थॉट्स हैं, जो टुच्चेपन की थॉट्स हैं, ख्याल हैं, जो बार बार आपको नीचे खींचते हैं, वो पैरेलल में उनको जगह दे दी, कमरे में बिठा दिया कोने में। करना वो है जो हमें ठीक लगता है, जो हमें फैलाता है, जो हमें वाइडन करता है, जो हमें गिल्ट और शेम से दूर रखता है, करना वो है। So that's really beautiful. I'm thankful that you reiterated that. Snehi, what are you saying? What are just labels? How to solve unresolved emotions, Zainab? कोई होप नहीं है, भूल जाओ, उनको अनरिजॉल्व ही रहने दो, उंगली नहीं करने का कीचड़ में। What are unresolved emotions? कीचड़ है ना, अनसॉर्टेड गुच्छा है, एंटैंगल्ड गुच्छा है। तो उसको अगर सॉर्ट करने की कोशिश करोगे, पकड़े जाओगे, ऐसा दलदल है वो, पकड़े जाओगे। और हम बहुत बार पकड़े जाते हैं ट्राइंग टू सॉर्ट इमोशंस। भूल जाओ। That is again just reflecting upon it in one way, yeah, not that just that's the only way, but just one way. Let unresolved emotions be. We all have that, I have that. Do not try to connect the dots. Do what brings you joy, what expands you, what you feel is right for you, so that you don't have time to connect the dots in that big mess. It is a mess. And slowly what would happen, slowly they will get resolved. Once you give yourself to right work, they will get resolved. वो पीछे पीछे, वो साइड इफेक्ट है। जो आप रेजोल्यूशन की बात कर रहे हो जनाब, दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ यू डूइंग अ राइट, लिविंग अ राइट काइंड ऑफ लाइफ. You would know if it is a right kind of life or not. हम सबको पता है हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, हम सबको पता है. किसी बाहर वाले को आके बताने की जरूरत नहीं है. No, you don't need me or someone else to tell you, अरे ये तो बहुत गलत तरह का जीवन है, कहां फंस गई ना. हमें पता है, हमें पता है, अच्छे से पता है. So when you are living a right kind of a life, taking it in a right attitude, using everything as a raw material for progress, what is the side effect or a bonus that you get? You get sorting of emotions naturally. आपको कीचड़ में उंगली डालने की जरूरत नहीं है सॉर्ट करने के लिए. कीचड़ में उंगली डालोगे फंसोगे बुरी तरह से. इसको कहते हैं माया जाल. Mystics, saints and masters, they call it भव सागर, भावनाओं का सागर. माया जाल, ट्रैप. माया जाल, यू नो, इफ यू रिमेम्बर द्रौपदी, जब इन्होंने कौरवों ने शायद एक बड़ा सा महल बनाया था ना, इफ यू हैव हर्ड दैट स्टोरी, उसमें बहुत ही इल्यूजन. Palace of Illusion. या यू नो अबाउट दैट. तो उसमें क्या होता था प्रिया, बताओ जरा. When Pandavas went to Indraprasth and created their kingdom there, so they created this huge palace called Palaces of Illusion, and it was made with the help of Mayasur. And in that in that palace, he called the Yudhishthira because he wants to become the Chakravarti Samrat. He calls all the kings to make them jealous and to see how worthy he is. And so one obviously Duryodhan also comes and he just falls into a pool, and then Draupadi laughs at him and he takes it to his ego, and that is why he does what he does to Draupadi. Beautiful. Yeah. So this Maya or palace of illusions, this is our life. This is our life. Wherever we get trapped in things, that is what is illusion. Now, if I want to fight the unresolved emotions, I would never be succeeding. क्यों? क्योंकि illusion है ना. Illusion है. Illusion मतलब है भी लेकिन नहीं भी.
तो अगर मैं उसमें उंगली करूंगी, मैंने फंसना ही फंसना है, जैसे कि वो भाई साहब गिर गए थे उसके अंदर। हमारा क्या काम है, वो जो कचड़ा है उसको पड़ा रहने दो कोने में, कचड़े की बात नहीं सुननी है, उसको पड़ा रहने दो कोने में। होगा भसड़ होगी जीवन में, कंफ्यूजन है, कोने में कर दो। आपने क्या करना है, आपने अपना समय देना है किसी सुंदर सी चीज को। इट कुड बी अ पर्सन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी लाइक art, music, where you are not depending on a person, to absorb yourself. Some kind of art, some kind of social service, some kind of music, anything related to beauty. You would know maybe indulging yourself into wanting to know more through books. Yeah, it can be any person independent thing that you give yourself to, so that you don't have to be dependent on other people around, कि ये सब कब मुझे समय देगा तो मेरा कुछ समय कटेगा, अदरवाइज तो मैं तो बिल्कुल बेकार। हाँ, so this is what we have to do. We don't have to put the finger in the unresolved mess, not at all. It's an illusion. Don't go there, don't go there. What to do? You catch the right flight, so that it does not matter now, or it gets sorted in effect as a side effect. तो फ्लाइट पकड़ी तो उसकी गाली दिल पे नहीं लगी, या वेला घूम रहा हूं तो झड़प हो गई, 1 घंटा उससे घूसा लात हो गई और पुलिस स्टेशन पहुंच गए। यही करते हैं हम, तो ये दिस इज व्हाट आई वुड से हियर। सो आई वुड जस्ट Swaroop is saying how to come out of a rut, have a kick-ass attitude towards life, doing and accomplishing things, do a getter, how to come out of a childhood sexual abuse. 1 in 6 men have been, and I am one of them. It's embarrassing to say this, but it is how it is. I don't want this trauma ever come as a hurdle in my life. Swaroop, very simple example. You are sitting here in this session. Is this thing, whatever happened with you, and something or the other happens with each one of us. I have been through sexual abuse. अब क्या करें, इतना गंदा हमने ही तो बनाया है सोसाइटी को। हम ही इतने भूले भिसरे लोग हैं, तो किस तरह का समाज बनाएंगे? And this is on us. The onus of responsibility is on us human beings now who are in young ages, कि कैसे सुंदर बनाए इस संसार को, कि हम दूसरे इंसानों को अब्यूज करना छोड़ दें। अभी क्या कर रहे हैं आप? खाने को अब्यूज कर रहे हो, ड्रग अब्यूज कर रहे हो, रिलेशनशिप अब्यूज कर रहे हो, तो उस इंसान ने कोई गलत थोड़ी ना कर दिया। यू आर ऑल्सो वन ऑफ द अब्यूजर्स ना। क्या गलत कर दिया उसने? तो कैसे यूज करें इस चीज को, ये पहचान के कि मैं भी तो अब्यूजर हूं। Am I not abusing my relationships? Am I not manipulating my relationships? Am I not manipulating food for my abuse, drugs for my abuse? I am doing that. तो उसने भी कर दिया। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा ना खोए। तो वो जो बाहर जो टेररिस्ट है ना, वो बाहर दिखते हैं, यहां भी है अंदर। कुछ नया नहीं हो गया। लेबल मत बनाओ, कुछ भूल जाओ उसको। अपने आप को सार्थक काम में डालना ही पड़ेगा। जो ये रट की आप बात कर रहे हैं, व्हाट इज रट? वो गाली गलौच हो गई बंदे के साथ, उसने गाली दे दी, मैंने गाली दे दी, गाली, दिस इज रट, दिस इज ट्रैप। व्हाट इज अ गुड लाइफ? यू कैच a good flight, you catch a beautiful flight, you do something beautiful with your life. I don't know what you do, but you do. You are the best judge for your life. तो जो भी हो गया पास्ट में, अब उसको चिपकना नहीं है, उसको देखना है कि मैं अभी भी तो अब्यूजर ही हूं। कैसे, किस तरह की होती है हमारी रिलेशनशिप? जो यूजुअली होती हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की आप बात कर रहे थे, किस तरह की होती हैं? आप पूरा दिन उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, वो पूरा दिन आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। ये अब्यूज नहीं है तो क्या है? क्या है ये? एक दूसरे का यूज ही तो है। ऐसे थोड़ी ना होता है, इसे प्यार थोड़ी ना कहते हैं। तो अब्यूज है ये। हमें पता भी नहीं है प्यार किसे कहते हैं। सो यूज इट एज दैट। लुक एट द फैक्ट्स ऑफ योर लाइफ, कि ये मेरा किस तरह का जीवन है।
और अगर मुझे ये नहीं करना तो कोई एक बेबी स्टेप उठाओ, छोटा सा स्टेप उठाओ कुछ सुंदरता की तरफ जाने के लिए। आपको पता लग जाएगा कि ये सुंदर काम है, खुद पता लगेगा। चाहे आप 5 मिनट पूरे दिन में, अगर आप 5 मिनट भी किसी सुंदर काम को देते हो ना, और रात को अगर सोने से पहले आप पूरा दिन रिवाइज करो अपने दिमाग में, आप देखोगे वो बिल्कुल स्ट्राइक आउट करेगा वो वाला पार्ट जो 5 मिनट आपने सुंदरता को दिए हैं। दिस इज हाउ द इनर बीइंग टेल्स यू कि आपने ये सही काम किया, ये सही जगह थी। So reflect upon your life. Reflect what are the hours that you are spending here and there. Are they really worthy of your time? ये रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ रट ही रहेगा, फिर वो रट तो चलता रहेगा। तो मैकेनिक्स है, रोबोटिक्स है, टेंडेंसीज अपना गेम खेल रही हैं, तुम थोड़ी ना जीवन जी रहे हो। अभी हमने जीना भी नहीं शुरू किया, अभी तो टेंडेंसीज गोल 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 गोल, दैट इज व्हाट वी कॉल एज रट ना। इट्स द सेम पैटर्न रिपीटिंग। सो अभी हु इज लिविंग माई लाइफ? टेंडेंसीज आर लिविंग माई लाइफ। वृत्ति, विकार, संस्कार। Yes. I would like to share. Yeah. It's like a new stream maybe. ओके, लाइफ में अभी 2-3 चीजें चल रही हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं चल रही, बस चीजें चल रही हैं। तो एक मुझे वैसे एक रिफ्लेक्शन चाहिए थी, जैसे मैंने पिछली बार शेयर किया था कि मैं सोलो ट्रिप जा रही हूँ, तो मैं होके आई, पर मतलब एक वैसा लगा कि मतलब अभी इंडिया या मे बी दुनिया इतना सेफ नहीं है जितना मैं शायद अपने फैंटेसी लैंड में बना के रहेगी। मतलब मजा आता है, अच्छा है, और आप खुद के साथ रह रहे हो, बैठ रहे हो, और मतलब आप, मैंने स्कूबा डाइविंग की, बहुत अच्छा लगा, मैंने पैराग्लाइडिंग की, बहुत अच्छा लगा, और ऐसे मतलब उसके बाद आके भी ऐसा लग रहा है कि हाँ एक हिम्मत बढ़ गई है लाइफ में। जैसे ऑफिस के मेल से डर लगता था, अब ऐसा लगता है यार स्कूबा डाइविंग कर ली इस मेल को तो जवाब दे ही देंगे, वैसे हो रहा है। पर मतलब जैसे आपको एक वो कांस्टेंट अवेयरनेस चाहिए कि मतलब इससे बात करनी है, इससे बात नहीं करनी, यहाँ बैठना या नहीं बैठना, ये पहन के जाओ ना जाओ। मतलब जैसे वहां पे एक इंसान, एक ग्रुप मिला जो कि काफी ऐसे स्पिरिचुअल ग्रुप था, जो मतलब बहुत ही एक बातें कर रहे थे यूनिवर्स, हायर पावर, और मुझे लगा बहुत अच्छा ग्रुप है। फिर उसमें एक बंदा मिला, उसके साथ मैंने एक दिन मतलब थोड़े घंटे एक दिन घूमा। फिर उसके बहुत मैसेज आ रहे हैं, मतलब कि महिमा भगवान ही चाहते हैं मैं मिलूं तुमसे, इसलिए मैं तुम्हारे हॉस्टल के बाहर ही खड़ा हूँ। मैंने कहा क्या चूतिया आदमी है यार, मतलब अपनी पीनस से सोच रहा है और भगवान पे नाम लगा रहा है। और फिर मैंने हॉस्टल चेंज किया, और मतलब तो वो लगा मतलब जैसे छोटे होते नहीं सोचा था कि ऐसे जो लोग रोज मंदिर जा रहे हैं और भगवान भगवान की बातें कर रहे हैं वो भी ऐसे होते हैं। मतलब ऐसे होता है ना कि मतलब छोटे होते वो होता है कि जो गंदे लग रहे हैं और जो अच्छे, जो अनसेफ लग रहे हैं और वो सेफ लग रहे हैं, वो दिखने में ही मतलब ऐसे लग रहे हैं कि यार ये तो पक्का ही छिछोरे टाइप के लोग हैं और इनसे दूर रहो। और पर बड़े होके वो इतना, पता नहीं, बड़े होके ऐसे नहीं होता, बहुत अच्छे लोग। एक और बंदा मिला जो कहता पूरी इंग्लिश झाड़ रहा है और ट्रेडिंग डेस्क में हूँ बैंक के, और 3 साल हांगकांग में रहा हूँ, 2 साल चाइना में रहा हूँ, और वो उसके मैसेज आ रहे हैं। मैंने कहा मतलब तो एक वो फीलिंग आ जाती है कि फिर किस पे विश्वास करना है। मतलब सोलो ट्रिप वही होती है ना कि आप जा रहे हो, आप नए लोगों को हाय बोलो, वो दोस्त, मतलब दोस्त नहीं पर ऐसे मतलब ट्रिप के लिए दोस्त बनेंगे। पर अगर आपको सब कोई डाउट की तरह देखना है और हर वक्त, मतलब वो अच्छी बात है, दैट इज सेल्फ केयर, कि हर वक्त आप सतर्क रहो और सबको गंदा मान के शुरू करो, पर फिर वो वेकेशन थोड़ी है। मतलब फिर तो वो एक प्रोजेक्ट बन गया कि 10 दिन खुद को यहाँ से जिंदा रख के आना है। मतलब वैसा लगा कि मतलब फिर वो सोलो वेकेशन कर सकते हैं क्या, मतलब जो पूरे मजे कर रहे हैं। एक मैं कैफे में बैठी, मुझे अकेले खाना बहुत पसंद है, लाइक रेस्टोरेंट में जाओ अपना वैसे बफे टाइप का और धीरे धीरे ऑर्डर करो और 2-3 घंटे खाओ। तो मैं बैठी और एक आंटी आके मुझे बोल रही है बेटा आपकी फैमिली नहीं है क्या?
कहा अभी तूने कभी किसी को अकेले खाना एंजॉय करते नहीं देखा क्या? तो मतलब हाँ, मतलब एंजॉय आप कर सकते हो, बट इतना एफर्ट है, मतलब ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल खुद को खुला छोड़ दो और मजा आ रहा है आपको काफी। हाँ, मतलब मेरे को काफी प्रो लोग भी मिले। आई फाउंड समवन इन हर 30s जो पिछले 10 साल से सोलो ट्रैवलिंग कर रही है, और मतलब वो काफी ऐसे लग रहा था कि मतलब काफी प्रो हो गई है, हर जगह नेगोशिएट कर रही है, मतलब वो हिम्मत दिख रही थी कि हाँ यार इन लोगों ने खुद को बना लो। वैसे फीमेल सोलो ट्रैवलर्स मुझे मिली जिनसे मुझे लगा हाँ यार दुनिया में होप है, ये लोग इतनी जगह कर चुके हैं। तो फिर भी मतलब वो वेकेशन नहीं लगी, ऐसा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था, रिकवरी थी, सेल्फ डिस्कवरी जर्नी थी, हिम्मत बड़ी, मजे आए, बट मतलब ऐसा लगा ग्रुप से आके घूमना चाहिए। वो इसे ट्रिप से आने के बाद लगा कि इस ट्रिप से रिकवर करने के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी आपको क्या? अगर आपको अगर ट्रिप करनी थी तो आप वो क्लब महिंद्रा के वैकेशन पैकेज ही चूज कर लेती, बट यू चोज टू फेस whatever the universe throws at you, right? And I think it has made you stronger. That's what I can understand from what you're saying. हाँ, बट प्लान स्ट्रॉन्ग का नहीं था, प्लान तो मजे करने जाने का था, वो तो गलती से स्ट्रॉन्ग हो गए। तो इससे Yeah. बढ़िया आप क्लब महिंद्रा के वो वैकेशंस ले लो, मेक माई ट्रिप में वैकेशन पैकेज आते हैं, वो भी सही है। Oh God. So a few things here, महिमा. पहली बात तो ये हमारे वर्ल्ड की सिचुएशन बताता है. It is a sad situation. This void that we keep on feeling within. We were talking of abuse earlier, yeah. We want to abuse people to fill up that void. Everywhere this game is going on. Everywhere. Parents are even abusers. You know, parents want their children always close to them. क्यों? Because अकेला ना होना पड़े. You know, तू मेरी बेटी, तू मेरा बेटा के नाम पे, प्यार के नाम पे. You know, Kabir says in one of the couplet, man मैला, तन उजला, बगुला कपटी अंग, तासे तो कौआ भला, तन मन एक ही रंग. वो कह रहे हैं कि मन तेरा मैला है, तन तूने उजला कर लिया, जो आप बात कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दैट. और इससे, इस हिपोक्रेसी से तो अच्छा बगुला ही है. यू नो, बगुला, जो बगुला हिपोक्रेट होता है, वो दिखता सेंट की तरह है लेकिन वो बड़ा चालाक है. हाँ, कह रहे हैं इससे अच्छा तो कौआ ही है, कम से कम ऊपर से भी काला है, अंदर से भी मन भी काला है उसका, कम से कम ट्रांसपेरेंसी तो है. या सो दिस जस्ट रिफ्लेक्ट्स a state of the world that we are in, and we are a part of that. We are a part of that. It's hard to go for a solo trip, as you said. Yeah, one needs a recovery from the solo trip. Yeah, other thing is सोलो की जब हम बात करते हैं, you know, a mind which can be an alone mind, that is what is soloness. I am all alone. Usually सोलो ट्रिप में भी जाके ना हम अकेले होते नहीं है. होता क्या है, ये दिमाग तो साथ जाता है ना. यू हैव कंपनी. कौन कंपनी? दिमाग. दिमाग में इंसान घुसे हुए हैं, इंसानों की कहानियां घुसी हुई हैं. तो सोलो, हम अकेले रह के भी, जंगल में रह के भी हम सोलो नहीं है. ये हमारी दुविधा है. सो व्हाट ट्रूली हील्स इज हियर द माइंड rid of people. It's very hard, but that's what true solo means, and that is what is healing in nature. So I can be in the middle of a crowd in within my family and relationships, and I can be solo here. No need of a solo trip to spend some money. I'm not saying do not go on trips, still go on trips, but I am just reflecting upon being solo. What is so nice about being solo? So I would say that I would just, as you have already used this experience for your own learning and growth, you know, can I look at the, first of all, the situation of the world? It is a very sad and bad situation. You cannot trust people. So can I become one drop of poison less in this world? That is our job. You were talking about purpose of life.
जहां जहां मुझे अपनी टॉक्सिसिटी दिख रही है, क्या मैं वहां अपने आप को थाम सकता हूं, रुक सकता हूं? So instead of talking about other people who are abusing, can I stop the abuse I do on myself and other people, taking a learning from them? Is that a possibility? That would change something in the world. कुछ मजा आएगा अब. Yeah, so I think it's really beautiful, and if one can use all this experience as a raw material to understand your own self, your own insecurities, the way the mind plays the game, and to know the world also in the process, I think no one can stop you. You are invincible, no matter how hard a situation may be. You will be just gaining strength and strength and strength, going through all these challenges with the right attitude. Yeah. Yeah, thank you for that deeper meaning of solo. घर पे भी solo हो सकता है, Yeah. थोड़ा दिमाग शांत करने पे. बिल्कुल. इस पे मीराबाई का भी एक कपलेट है. आई विल जस्ट शेयर विद यू. साजन रे मैं तोरे थाकी और बसू विराने वास, काम करूं घर आपणो और जिवड़ो तमीड़े पास. So what is she saying? She is saying, oh my beloved, talking to her own higher self or Krishna. Oh my beloved, I belong to you. My fabric is your fabric. I do not belong to this world. साजन रे मैं तोरे थाकी और बस कहां गई, बसू विराने वास. मैं ऐसी जगह रह रही हूं जो मुझे बड़ा एलियन लगता है. आई डोंट फील माई सेल्फ, आई डोंट फील एट होम हियर. बड़ा एलियन लगता है यहाँ पे. बसू विराने वास कहां, और मैं अपना काम कैसे चलाती हूँ? काम करूं घर आपनो, जो भी मेरी ड्यूटीज हैं, जो मुझे करनी है इस जीवन में, वो मैं करती हूँ. जो सार्थक काम है वो मैं करती हूँ. और जिवड़ो, द हार्ट, माई हार्ट belongs to you. So you are here in this world, but you are somewhere else. You are absorbed somewhere else. Now, what is that somewhere else? That is for all of us to discover. Yeah. Swaroop, you want to share something? Yes, on solo trip. So I read this book called No More Mr. Nice Guy. So it teaches a person to not be desperate and to be a man first, to learn what is it is actually to be a man. So this thing was written to you should go on solo trips, take a book, no electronics, nothing, and walk your way where you will be with yourself and learn to enjoy your own company, learn to enjoy that moment, the here-ness, the now-ness in that moment, and live everything that, like you said, the people, the circumstances, the situation, all that you have in your mind, live them at the beginning of your journey, and when you will come out from that trip, you will be a different person. You will be like I somehow saved my soul. You'll feel like that. आपने And किया है? स्वरूप, have you tried that? बहुत जाने की कोशिश किया, बट इधर उधर के चक्कर में जॉब नहीं थी, फिर जॉब लग गई, फिर उसके बाद मतलब पूरा कंपनी में मेरा डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग में, कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से हूँ, तो हम कॉन्ट्रैक्ट करके देते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हैं, साइन करते हैं. तो वो डिपार्टमेंट ही उठ के चला गया था. मतलब मेरे कंपनी से महिंद्रा करके कंपनी है वहां पे, तो वहां पे लोग ही नहीं थे, तो उसको संभालते संभालते 6 महीने लग गए. मेरा काम, और उसके ऊपर ऐसे टाइप के लोग जो आपकी मतलब आपका जो वाइब्रेशंस है ना, वो छीनते हैं. उनको मजा आता है ना, कि अरे तुझे तो कुछ नहीं आता, अरे तुझे, मैं ब्लंडर्स किया हूँ, मैं जानबूझ के किया हूँ, मैं एरोगेंटली ब्लंडर्स किया हूँ, और मुझे मजा आया है ब्लंडर्स करके. और वो ब्लंडर्स करके मैं जो सीखा हूँ, मेरा मैनेजर जो है, हाय मेरे को शर्म लग जाएगी है, मैं कैसे कर दिया है ऐसे गलत, वो वाला एटीट्यूड मैंने छोड़ दिया था ज्वाइन करते टाइम ही, कि मेरे को शर्म लग जाए कि लोग मेरे को बोले कि आप सिविल इंजीनियर हो, आप ऐसे सवाल कैसे कर रहे हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे को ऐसे बोल दे तो.
मैं ब्लेटेंट सवाल भी मैंने उस दिन जाके पूछा कि हाँ भाई बता, एक मतलब ईगो हर्ट हो गया, तो मैंने भी उसको बोला कि हाँ भाई बता सीमेंट में कंपोजिशन क्या है। वो भी सिविल इंजीनियर है, मेरे से 10 साल एक्सपीरियंस है, वो बता भी नहीं पाया। मैं बोला कि भाई तू जितना जानता है तू उसी के अंदर खेलेगा, मेरे को जितना पता है मेरे को पता है, मैं बहुत आगे जाने वाला हूँ तेरे से। वो तू तड़ाका टाइप हो गया, लेकिन बाद में मैं ही जाके उसको बोला कि अरे सॉरी सर, ऐसे मैंने बोल दिया। फिर पैचअप कर लिया, मैं अच्छे से बात कर लिया, तो दो चाय पिलाई उसको, समोसे खिलाए, शाम को लेके बियर पिला के फिर आ गया, तो सही है अभी। स्वरूप, स्वरूप आई वुड से देखो, जब तक हम दूसरे इंसानों के बारे में इतना दिमाग में रखेंगे ना, वो ना परेशान करता है हमें, मतलब बर्डन करता है ना। अगेन एक और दोहा शेयर करती हूँ इसी बात पे। कबीर जी कहते हैं, निज सुख आत्म राम है, दूजा दुख अपार। जब भी आपके दिमाग में दूसरे लोग रहेंगे और अपने आप को भी दूसरा ही मानना, ये मत सोचना कि अरे नहीं ये तो मैं अपने बारे में सोच रहा हूं ना, मैं भी एक दूसरी ही हूं। जब भी मेरे दिमाग में ऐसे विचार रहेंगे जो मुझसे या दूसरों से रिलेटेड हैं, भसड़ मचा रहे हैं, कहानियां घूम रही हैं, मैं दुख में ही रहूंगा। तो अब ये जो सेशन हम करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि क्या हम एक जीवन को साधना के रूप में ले सकते हैं कि नहीं, तब बात करो यहाँ आके, है ना। क्योंकि साधना उसमें क्या है, मतलब फिर उसमें मैं साधना मतलब कि मैं सारा चीजों को, जो भी मेरे साथ जीवन में डे टू डे लाइफ में हो रहा है, मैं उसको किस चीज के लिए ले रहा हूं? अपनी ग्रोथ के लिए, बस। मैं ये नहीं बोल रहा कि अरे उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, अरे पागल इंसान। अरे तुम दूसरों की जिंदगी तो फिक्स नहीं कर सकते ना, तुम उसको जाके ठीक कर दोगे क्या? नहीं नहीं कर पाएगा, है ना। नहीं, तो उसके बारे में बक 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 करनी ही क्यों है? क्यों टाइम लगाओ? जहां कोई एक्शन नहीं ले सकते। मैं इन्फ्लुएंस लेकिन करता हूँ, मैं चेंज किसी को करने की कोशिश नहीं करता, मैं लेकिन इनको हाँ इन्फ्लुएंस करता हूँ, बहुत हाँ हाँ, वो भयंकर तरीके से इन्फ्लुएंस तो जो इन्फ्लुएंस आप करता हूँ। करते हो, जो आप मैनिपुलेट इन्फ्लुएंस करता करते हूँ, हो उनको ना, कंट्रोल करता हूँ, उनका बिहेवियर कंट्रोल करता हूँ। तो ये चीज में बढ़िया पहले बढ़िया। मजा आने लगा, अभी ये चीज जो है बोरिंग लगने लगी है, और मतलब थोड़ा सा ये लाइफ रैट हो गया है मेरा। हाँ हाँ हाँ, तो अगर हमने रट से निकलना है, तो सारा ध्यान मुझे अपने पे रखना है, दूसरों से हटा देना है, राइट, दूसरों से हटा देना है। ये जो मजा ले रहा था मैं, इसको बंद करना है मुझे। हाँ, मजा, बिल्कुल बिल्कुल, वो गंदा मजा वो है, गंदा वाला मजा है ये। गंदा एक मजा है। इनर वॉइस हम्म, मेरे को बोल रहा था कि तू ये गलत कर रहा है। बहुत सुंदर, बस उसकी बात सुननी है ना। वो इनर वॉइस हम सबके पास होती है, लेकिन हम इतने ज्यादा रश में होते हैं टेंडेंसीज के, कि हम रोक नहीं पाते अपने आप को। हाँ। बार बार उसी तरीके से बिहेव करते हैं, बार बार उसी तरीके से बिहेव करते हैं, तो वो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो तो टेंडेंसीज ही ऐसी होती हैं, दे आर वेरी मैकेनिकल, घूमती रहेंगी गोल 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 गोल। तो समझ आने के बावजूद भी मैं बार बार गिरता पड़ूंगा, गलत काम करूंगा। और ये हमारा काम है। व्हाट इज माई जॉब एज अ ह्यूमन बीइंग? मनुष्य होके मेरा क्या काम है? समझ को और जीवन को एक बनाना है। ये नहीं कि समझ कुछ और कह रही है और जीवन गलत चल रहा है, ये नहीं। ये मेरा काम है। वी आर अ मैजिशियन, रिमेंबर, वी आर अ मैजिशियन, दिस इज माई टास्क। इट्स अ लाइफ टाइम ऑफ अ प्रोसेस। इसको ही साधना कहते हैं। आप साधना पूछ रहे थे ना, किसे कहते हैं? इसको साधना कहते हैं। और अगर आपका जीवन साधना नहीं है, बहुत पिटोगे जीवन में। तो अब साधना भी आसान नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि ये साधने का जीवन बहुत आसान है ना, ये भी मुश्किल है। और बार बार अपनी नाक पे गिरना भी मुश्किल है। अब कौन सा जीवन चाहिए, चूज कर लो। इस वाले जीवन में कम से कम ग्रोथ है, इसमें ग्रोथ है, इसमें जॉय है, इसमें प्रोग्रेस है। वो जो नाक के बल बार बार गिरने में ना प्रोग्रेस नहीं है, उसमें बस गिल्ट और शेम ही है और कुछ नहीं है, उसमें फ्रस्ट्रेशन है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जैसे कि मेरा अब एक बॉस तो नहीं है, खुद का बॉस नहीं है, वो दूसरे डिपार्टमेंट का है, वो सीनियर है, वो मेरे को बहुत मतलब ज्ञान झाड़ता है, मुझे सब पता रहता है, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के यस सर यस सर यस सर
मैं चाहूँ तो 2 मिनट में क्या बकवास कर रहा है ऐसे करके भी मैं, लेकिन रिलेशनशिप खराब होगी, फिर उसके बाद इधर उधर के काम में मैं 10 दोस्त बनाया ना, मैं 7 टाइम एफिशिएंट हो गया, 7 टाइम्स 8 टाइम्स एफिशिएंट हो गया। मैं सबके सामने एकदम बोलते हैं ना, येड़ा बन के पेड़ा खाओ, मैं येड़ा बन के ही पेड़ा खाता हूँ, मेरे को मजा आता है। पहले तो लग रहा था गलत कर रहा हूँ, फिर मजा आने लग गया, है ना? कि अरे यार मेरा तो काम निकल रहा है, मेरे को ज्यादा सर फोड़ना भी नहीं पड़ रहा है अब तो, है ना? तो ये लोग भी पीछे पीठ के पीछे बोलने लगा, अरे ये बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, ये तेरे को मीठी मीठी बात करके काम करा देगा। बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, मीठा। मेरे पीठ के पीछे मुझे सुनने का है कि ये बहुत तो मीठा बोलता अब है। और प्रॉब्लम क्या है स्वरूप? तो मैं यहाँ पे अगर मैं साधना वाला लाइफ चूज करता हूँ, तो मैं मेरे को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? उसको बोलना चाहिए कि हाँ तू मेरे को ज्ञान मत दे, मेरे को बहुत पता है तेरे से। ऐसा अगर बोलूंगा तो मेरा काम नहीं होगा, नहीं मेरे को देखो, बहुत लाइफ में बहुत ये प्रॉब्लम्स आएंगी मुझे। हाँ तो पे द प्राइस ऑफ योर फ्रीडम, पे द प्राइस। या तो उनके गुलाम बने रहो और जो वो बकबक करते हैं सुनते रहो। मुझे नहीं पता वो बकबक है कि नहीं, तुम्हें ज्यादा पता है। हाँ, वो मैं फालतू ये कह रही फालतू हूँ के कि अगर कोई, फालतू के मोरल पोलिसिंग जो होते हैं ना, वो टाइप। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज ऐसी लग रही है जिसके बारे में आप बार बार नहीं सुनना चाहते, अब मुझे नहीं पता वो क्या चीज है, अगर आपको लग रहा है, पे द प्राइस फॉर योर फ्रीडम, उस बंदे को आराम से बताइए कि मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, आप बार बार ये बात नहीं कीजिए। सिंपल। रिलेशनशिप टूटती है तो पे द प्राइस, हम्म। पे द प्राइस। ऐसे आप साधना के पथ पे आगे बढ़ते हैं। फ्री आजादी फ्री में तो नहीं मिलती ना। भगत सिंह, चंद्रशेखर ने अपनी जान गंवाई ना आजादी के लिए। आजादी फ्री में नहीं मिलती है। आजादी के लिए वी हैव टू पे द प्राइस, वी हैव टू लूज मेनी फ्रेंड्स, वी हैव टू मेक अ न्यू फ्रेंड इफ पॉसिबल, वी हैव टू लिव ऑल बाय आवरसेल्व्स many a times. This is the price that we pay for freedom. So pay the price. If you want to live a truthful life, एक honest and truthful life अगर जीना चाहते हैं, तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। करो, खुश होके करो। शर्ट खरीदने जाते हो तो 2000-3000 देते हो ना। उसमें हाँ। थोड़ी ना हम बोलते हैं अरे अरे कैसे दूं यार, नहीं नहीं ऐसे ही दे दे, फ्री में दे दे। नहीं, कोई भी नहीं देगा। आजादी भी इस तरीके से ही है। So if you want to live a truthful life, an honest life for yourself, which you consider right, कि ये मेरे लिए बेटर है इन चीजों से बचना, तो you pay the price. I have paid the price for living a life that I want. I have paid the price. I still pay the price. अब मुझे लोग बोलते रहे कैसी है, गंदी है, बोरिंग है, अनुषा कुछ बता रही थी। अरे भैया, पे द प्राइस फॉर बीइंग योरसेल्फ। यू हैव टू पे द प्राइस, बट यू शुड नो दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। ये आपको पता होना चाहिए, ये और कोई नहीं बताएगा। अंदर से वो जो आप इनर वॉइस या समझ की बात कर रहे थे, वो समझ आपको बताएगी कि मेरा सही पथ है कि नहीं पथ है। यू नो, इमेजिन दैट यू गेट अ नेचर्स कॉल, अभी पॉटी का प्रेशर बन जाए, तो क्या आप 10 लोगों से पूछ के जाओगे अरे जाऊं कि नहीं जाऊं, कहीं तुम जो बोरिंग तो नहीं समझेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ये मेरे लिए सही है। अगर प्रेशर है तो मुझे उसको रिलीव करना है। So if you know that you have a right path in your life, for that you would not be caring what people are thinking about you. इतना टाइम ही नहीं होगा आपके पास। अरे बोरिंग बोल रहा है तो बोले, मुझे तो बचाना है उस बच्चे को, या मुझे तो जंप करना है स्विमिंग पूल में, या मुझे तो जो भी करना है अपने समय का करना है, क्योंकि मुझे पता है ये सही है। मुझे पता है ये सही है, ये सही दिशा है। आपको सब पता लग जाता है सही दिशा कौन सी होती है, गलत दिशा कौन सी होती है। वो केस में तो मतलब व्हाट आई हैव रेड कि लड़कियां इमोशनल बींग्स होती है, उनको सही गलत का फर्क ना तुरंत पता चल जाता है, बट वी मेन आर रैशनल, हमको सही गलत इतना नहीं होता। आप देखेंगे जेल में सबसे ज्यादा मर्द ही है, लड़कियां नहीं है उतना। हमको वो इमोशन जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है थोड़ा, वो ईक्यू उतना नहीं होता है हमका। एक क्या नाम है हमार में, मोस्टली मेन आर इम्पल्सिव, हम जल्दी गुस्सा होते हैं अरे और भैया, गुस्से में कुछ भी स्वरूप, बोल देते हैं, उतना स्वरूप, सेल्फ स्वरूप, अवेयरनेस नहीं होता है। स्वरूप, हम एनिमल्स तो नहीं है ना कि हम सिर्फ जेंडर हैं। क्या आप सिर्फ एक आदमी हैं? आदमी से पहले कुछ नहीं है?
मैन की जो बात कर रहे हैं, मेन आर इम्पल्सिव, विमेन आर इमोशनल, बोलते रहो कुछ भी, मेन आर रैशनल, वुमेन जो आर इमोशनल। जो भी आपने तो बोला, ये कहाँ से ये उठाया है ये लेबल्स? मैं देख क्यों क्यों ये मैं क्यों चाहिए, क्यों चाहिए ये? क्यों सर का भार बना रहे हो इसको? आदमी से पहले कुछ हो कि तुम नहीं हो, या सिर्फ आदमी हो? आदमी हो मतलब जो जेंडर वाला आदमी है। आत्मा जो होती है ना, उसका कोई जेंडर हम्म नहीं होता। जो तुम्हारी इनर वॉइस है ना, वो इनर वॉइस का कोई जेंडर नहीं है। हम्म वो इनर वॉइस इम्पल्सिव नहीं है, ना इमोशनल है। वो इनर वॉइस महिमा में भी उतनी ही समझदार है जितनी तुम में समझदार है। उसकी बात सुन लो भैया, जेंडर वेंडर भूल जाओ। हम्म फंसाएगा ये, जेंडर फंसाएगा, सबको फंसा रखा है इसने। सो वो जो समझ है, द लाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसका कोई जेंडर नहीं होता। ना वो स्त्रीलिंग होता है, ना वो पुरलिंग होता है। हमको हम्म बस उसकी बात सुननी है, हाथ जोड़ के, जब जब सुन पाए। नहीं सुन पाएंगे तो गिरेंगे, पड़ेंगे, सुनेंगे। और बाकी जो आदमी और औरत है, वो तो आनी जानी चीज है। राइट। Men are from Mars and women from Venus. करेक्ट। Forget about that. मतलब there is a lot of bullshit in the market, you know. हम्म है ना? तो हमको हर चीज को बाय नहीं करना है, हमको अपनी समझ भी यूज करनी है। At व्हाट्स one, बेस्ट फॉर अस। हाँ, that's best for us. What's best for us? Exactly. बस, है ना? अब फिर आप बुक्स पढ़ो, किताबें भी पढ़ो, फिर लेकिन अपनी समझ के साथ पढ़ोगे। ये नहीं कि जो जो किताब में लिखा हुआ है उठा के अपना भार बना लिया। बहुत बहुत बुक्स, बहुत आइडियोलॉजी, बहुत फिलोसफीज को हाँ सब्सक्राइब करता है, हाँ बट हाँ, वो स्कूल ऑफ थॉट जो है, उसको लेके बैठना नहीं है। वी शुड बैठना नहीं, बिल्कुल बैठना नहीं। वो वो सारे फ्लेवर्स को चखना चाहिए, किसी एक को पकड़ के बैठना नहीं चाहिए। बिल्कुल, बैठेंगे तो रॉट हो जाएंगे, स्टैग्नेट हो जाएंगे, वो हमें पसंद आता नहीं है। राइट। है ना? या महिमा। I was Uh, just saying, if you are, you can continue after me. Like, men are rational, women are emotional. ऐसे जियोगे ना तो ऐसे एग्जाम्पल्स ही मिलेंगे तुम्हें। तुम्हें सारी इमोशनल वुमेन दिखेंगी, तुम्हें खुद को ज्यादा रैशनल समझोगे, ज्यादा रैशनल, तो फिर तुम्हें वो अपोजिट केसेस दिखते भी नहीं, क्योंकि फिर हम वो बिल्कुल अपने ही बायस में चले जाते हैं। हाँ, कंटिन्यू प्रिया, saying something. I interrupted someone, sorry. yeah, ma'am, I have a question from you. Just now, right now, you mentioned how we must learn to listen to our inner voice, and it tells us everything we need to know about ourselves. But what I've found over the years is that earlier my inner voice used to be very prominent. You know, it used to tell me, yes, this is wrong, this is right, and sometimes I used to listen to it, but now I don't. And it's becoming very faint. Now when I do something, it's not very prominent, and sometimes I don't even hear it. So it's fading away. It's, I don't know, it's getting lost somewhere. So is there a way to, find that inner voice back? Or देयर इज अ वे, यस देयर इज अ वे प्रिया। इमेजिन करो कि आपकी बाजू की मसल वीक हो गई है, और आपको सजेस्ट किया गया है इसको जिम करना। जी, तो आप जिम में क्या करते हो? उसको मूव करते हो ना, उसको बार बार यूज करते हो ना, उस हाथ को जिसकी कैपेसिटी बढ़ानी है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट। किसी भी मूवमेंट में आपको अगर एक बाइफर्केशन दिख जाए कि टेंडेंसी, पैटर्न ऑफ बिहेवियर क्या कह रहा है, इस डायरेक्शन में चले जाओ, समझ कुछ और कह रही है। नाउ इस डायरेक्शन का ना फोर्स बहुत ज्यादा तेज होती है, तो इसको रोकना मुश्किल हो जाता है। इनर वॉइस ना ज्यादा फोर्सफुल नहीं होती, तो इसकी बात सुनना कठिन रहता है। सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, दिख रहा है कि अगर मैं इमोशनल पैटर्न के साथ जाऊं तो मैं इस तरफ जाऊंगी, साफ दिख रहा है, हाँ। लेकिन मुझे कहीं आवाज आ रही है कि ये गलत है, इधर नहीं जाना। तो अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे रुक जाना है।
आपको बहुत दर्द होगा, बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक डी एडिक्शन। आपको इसको प्रैक्टिस करना है। इट्स नॉट इजी बट इट्स ब्यूटिफुल। आप एक बार उसको प्रैक्टिस करोगे, 2 बार प्रैक्टिस करोगे, चलो तीसरी बार ये गेम बाजी ले गई, कोई बात नहीं, ठीक है, भूल जाओ। फिर से प्रैक्टिस करो, फिर से प्रैक्टिस करो, एंड स्लोली it will be actually effortless to use this muscle, and you will be actually feeling a lot of burden when you use the earlier addiction, the emotional patterns, thought patterns, tendencies, जहां एक रश के साथ निकल जाते थे और बार बार अपनी नाक के बल गिरते थे। अब ये करना मुश्किल हो जाएगा। If you do not gym the muscle, there is no hope. और जब जिमिंग करने जाते हैं पहले दूसरे दिन, स्पेशली जो वीक एरिया है उसकी जिमिंग करने जाते हैं, दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, एक एक हफ्ता के लिए थोड़ा आपको रेस्ट भी करना पड़ता है। तो ये सब कुछ होगा, दर्द होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। डी एडिक्शन जब होता है, अगर मैं 100 सिगरेट से 1 सिगरेट पे आ रही हूँ, एक दिन में नहीं आ पाऊंगी, दर्द होगा, पेन होगा, आई विल बी रशिंग टुवर्ड द सिगरेट, and yet I would know it is not good for me. So what will I do? 100 से पहले 50 पे आऊंगी, 50 से 20 पे। Be kind to yourself, and slowly then it reduces, and then I see that there is so much joy in this one that I actually don't want to go there. इसमें अब डिस्टेस्ट आता है, मैं उठा तो लेती हूँ वो जाम, लेकिन इसमें रस नहीं रहा, अब रस इधर आ रहा है। तो जब आपको रस इधर आने लग जाएगा ना, व्हेन यू आर यूजिंग द वॉइस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो हम समझ का भी नाम देते हैं कि समझ क्या कह रही है, हाँ, जब आप इसका जॉय आपको एक बार टेस्ट लग जाए, फिर आपको इस चीज को बार बार पिक करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। ये फिर भी रहेंगे, ये गायब नहीं होंगे, ये तो जीवन पर्यंत रहेंगे, जब तक आपका जीवन है तब तक ये रहेगा, टेंडेंसीज पैटर्न्स रहेंगे, बट यू विल गेट मोर एंड मोर स्ट्रेंथ एंड मास्टरी ओवर योरसेल्फ, and this is joy, this work is joy. Yes, Yeah, that was really helpful. Thank you. thank you for asking. So I'm going to just kind of wind up the session here. थोड़ा बोलते बोलते भी थक जाती है ना जबान, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। Yeah, तो Swaroop, you want to have, do you have anything to share? You have unmuted yourself. Yeah, really, this session is very interesting. I want to join this session every weekend if possible ठीक है, तो because आप, those of us who have joined us for the first time, I think Priya has joined for the first time, Saurabh, I'm not sure. So आप अपना नंबर चैट विंडो में डाल दो, I can add you onto a group जिसमें we keep on sharing the links, हाँ, तो जो जो सेशंस होंगे आपको उसके बारे में पता लग जाएगा। Some of you are already on the group, so that's okay. Yeah. So anything else from anyone? Any lasting comments? Okay, a few of us have not shared. I think many a times, I begin to talk too much. Saurav has not shared. Suparva also did not share today. I'm sorry if I've taken too much of time in talking. And if you are joining next time, please do share. Yeah? And forgive me for talking too much. Yeah. no, Ma'am, this I is have a question. absolutely great. Yeah. Yes, The Swaroop. session is being recorded, so can we get it like somewhere, Yeah, this yeah. recorded session? So these sessions will be put up on our YouTube channel, जिस पे बहुत मटेरियल है earlier sessions का, कबीर के couplets का, day to day life में how they are useful. So I will share this session, the recording, with all of you. You just put the number on the chat window. I'll share it with all of you. Yeah, Suparva, you wanted to share something? You had unmuted yourself. Yeah, ma'am, I would just like to say something to you, and I don't think that you should apologize because all the things that you were saying, I was listening to it very keenly, and I was trying to, gather it in my mind and trying. I was just trying to sort it out, and I was trying to
filling the void, sometimes that I feel, and then you were telling, you were giving examples, and that is why today I did not really share anything because I was focusing more on the listening, and I was just making a mental plan in my mind that, this week, what am I going to do, and what, the beautiful things I'm going to add. So thank you so much for the session. I really, really enjoyed it a lot. Thank you, Suprabha, for sharing. Yeah. Yes, Saurav, you were late today. No issue. Thank you for joining. और next time थोड़ा जल्दी आ जाना अगर इच्छा करे. I'll be sharing the recording with all of you who all are sharing. Saurav has shared. Swaroop, आपका नंबर आप मेरे पास है. Have you all joined from Insider? अगर आपने Insider पे टिकट खरीदी मेरे पास नंबर आ जाएगा. परवा का तो मेरे पास आई थिंक होगा नंबर. इन केस नहीं भी है, you have the link, you can join every Sunday. Yeah. So, and rest of you, if you don't share the number, every Sunday at 8 o'clock, exactly this thing, this link to be used. And if you on YouTube, you look up Monica Gulati, that is my name, आपको YouTube channel मिल जाएगा. उस channel को if you subscribe, you will be getting all the recordings there. Okay, Saurav. Great. So thank you, everyone. More power to all of you, more light to all of you. Thank you for joining and sharing so honestly. Yeah. Bye-bye. Okay, Priya. Okay, thank you.